Good morning, students. Students will discuss about the consumer's equilibrium in two commodity case. Okay, we have already discussed it through a schedule in the graph. Okay, but the schedule which is given in the book, that is according to the same units of the commodities. Okay, that means both the commodities we are consuming the same units. Okay, at 3 units, by consuming 3 units of both the commodities, like 3 units of X and 3 units of Y. Okay, the consumer found himself or herself in satisfaction. Okay, so it is not necessary that the consumer has to consume equal units or equal amount of both the commodities. Okay, for struck in the state of equilibrium. Clear? Now we will discuss that by consuming different units of both the commodities or different combination of both the commodities, the consumer can strike himself or herself in equilibrium. Okay, इन टू कमोडिटी केस. ओके, लाइक इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो दोनों ही कमोडिटीज़ का सेम यूनिट, लाइक 3 यूनिट ही एक्स ही का कंज्यूम करेगा तो 3 यूनिट्स ही वाई की कंज्यूम करेगा, तो ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है, वो डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम कर सकता है, एक कॉम्बिनेशन. ओके, लाइक 2 यूनिट्स एक्स की एंड 3 यूनिट्स वाई की कंज्यूम करे, या 4 यूनिट्स एक्स की एंड 3 यूनिट्स वाई की कंज्यूम करके भी अपने आप को इक्विलिब्रियम में फाइंड आउट कर सकता है. ओके, एक कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे. So let's start. Two cases will be there when the price of both the commodities is same. Okay, दोनों ही commodities का price same है. And the next combination, case will be when the price of both the commodities is different. Okay, एक तो दोनों का price same होगा, दूसरा case होगा जब दोनों का price different होगा. Now we are taking the case first. The first case, when the prices are different. Okay, both the commodities, for both the commodities, जब दोनों ही commodities के prices different हैं. ठीक है, तो उस केस में किस तरीके से कंज्यूमर अपने आप को इक्विलिब्रियम में स्ट्राइक करेगा. ओके, सो व्हेन द प्राइसेस आर डिफरेंट. नाउ वी विल टेक सम अजम्पशंस. ओके, उस शेड्यूल को बनाने के लिए या कंज्यूमर से इक्विलिब्रियम के लिए हम कुछ अजम्पशंस लेंगे. ठीक है, वो क्या अजम्पशंस होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए. ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला फॉर टू कमोडिटीज, MUX upon PX is equals to MUY upon PY is equals to MUM. Okay, that means the proportion of marginal utility of X and its price should be equal to marginal utility of the proportion should be equal to the proportion of marginal utility of Y commodity एंड इट्स प्राइस. ओके, इन दोनों का प्रोपोर्शन किसके इक्वल होना चाहिए? वर्थ ऑफ मनी या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस. ओके, लाइक सिंगल कमोडिटी केस में हम एक कमोडिटी ले रहे थे तो ये प्रोपोर्शन MUM के इक्वल था. ठीक है, अब एक और कमोडिटी हमारे पास आ गई है तो उसका प्रोपोर्शन भी हम ऐड कर देंगे, तीनों इक्वल होने चाहिए आपस में. ओके, नाउ as we know that MUM, marginal utility of money, worth of money जो है वो remains fixed. Okay, worth of money remains fixed. ये constant रहता है, change नहीं होगा. ठीक है, now uh, to form or to formulate the schedule consumers equilibrium in two commodity case. Okay, कुछ चीज़ें हम assume करके चलेंगे. One is हमें कोई कोई certain hard and fast rule नहीं है यहाँ पे, तो हमें price खुद assume करना पड़ेगा दोनों ही commodities का, एंड जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो भी हम अज्यूम करके चलेंगे. ओके, क्योंकि कोई सर्टेन रूल या रेगुलेशन या फॉर्मूला हम फॉलो नहीं कर सकते यहाँ पे इसके अलावा. ठीक है, तो प्राइसेस कहाँ से आएंगे? हम अपनी मर्जी से अज्यूम करेंगे, एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी हम मर्जी से ही अज्यूम करेंगे. सो प्राइसेस हमने डिफरेंट लेने हैं, सो आई एम टेकिंग PX as ₹5 per unit and PY as ₹10 per unit. Okay, these are per unit, whatever the unit of the commodity is being there. Okay, चाहे वो kilograms में है या फिर unit wise है. Okay, तो per unit हम दिखा रहे हैं price. ठीक है, next thing, this is the price. Next thing, the income of the consumer. Okay, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था एक कंज्यूमर विल सेटिस्फाई
himself or herself in a state where the marginal utility of x and its price, the proportion of marginal utility of x and its price is equals to worth of money, okay, with his given income, okay। तो इनकम जो गिवन इनकम है या उसकी इनकम है, उसी इनकम की रेंज में वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, उससे ज़्यादा इनकम नहीं। दैट मीन्स इनकम भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं, अजम्पशन है कि इनकम कांस्टेंट है, ठीक है। तो गिवन इनकम में ही अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो ये इनकम भी हम अज्यूम करेंगे। सपोज द गिवन इनकम इज ₹50, ओके। कंज्यूमर के पास 50 रुपये हैं, ठीक है। सो गिवन इनकम इज ₹50। इसी गिवन इनकम में ही वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, क्लियर। एंड नेक्स्ट थिंग इज दिस इनकम और दिस गिवन इनकम शुड बी फुली कंज्यूम्ड, ओके। ये गिवन इनकम जो है पूरी तरीके से कंज्यूम हो जानी चाहिए, क्लियर। अगर नहीं हुआ है, कुछ बच जाता है इसमें से, तो कंज्यूमर और ज़्यादा बाय कर सकता है। दैट मीन्स द कंज्यूमर कैन बाय मोर, ठीक है। अगर बच सपोज 40 रुपये खर्च हो जाते हैं, 10 रुपये बच जाते हैं, तो 10 रुपये से वो और यूनिट्स खरीद सकता है, आइदर फॉर एक्स और फॉर वाई, ठीक है। खरीद सकता है, 5 रुपये पर यूनिट इसका है, 10 रुपीज़ पर यूनिट इसका प्राइस है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी कॉमोडिटीज़ की कुछ यूनिट्स वो खरीद के कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो अपनी यूटिलिटी इंक्रीज कर पाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएंगे, वट एवर इज द केस, ओके। सो द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन ₹50 एंड दैट शुड बी फुली कंज्यूम्ड टू रीच इन दिस पोजीशन, ओके। तो ये भी हम यूज करेंगे, क्लियर, गिवन इनकम। नेक्स्ट अब हमें फाइंड आउट करना है MUX एंड MUY, ओके। MUM भी हमने अज्यूम करना है, सो अजम्पशन में थर्ड पॉइंट हम ले लेंगे MUM, ओके। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 4, ओके। 4 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी लेके चल रहे हैं हम, यूटिलिटी है, ठीक है, दैट इज 4 यूटिल्स, ओके। वर्थ ऑफ मनी 4 यूटिल्स है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि निकलती कैसे है, 1 रुपी के अकॉर्डिंग निकलती है। दैट मीन्स 1 रुपया स्पेंड करके हमने जो कंज्यूम किया उससे कितनी सेटिस्फेक्शन है, कितने यूटिल्स मिले, वो हमारी MUM हो जाती है। सो MUM इज 4 यूटिल्स, ओके। सो हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई एंड MUM टू वर्कआउट ऑन दिस फॉर्मूला, ओके। इस फॉर्मूला पे वर्कआउट करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें मिल चुकी हैं। नाउ वी विल फॉर्मुलेट द टेबल, ओके। जब हम टेबल बनाएंगे, and this proportion will form the table, okay, in this portion here will be the units of the commodities MUX and MUY, 3 कॉलम्स हमें बनाने हैं। Now how we will put the values in the columns for MUX and MUY, okay। Now work out, like we have MUX upon PX and MUY upon PY, clear। तो हम like these are म्यूचुअली इक्वल टू ईच अदर, ओके। वो एक दूसरे के म्यूचुअली इक्वल है, ठीक है। दैट मीन्स MUX इज ओवर PX, इफ MUX ओवर PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM, ओके। सो दैट मीन्स MUX अपॉन PX MUM के भी तो इक्वल है, राइट। If MUX upon PX is equals to MUY upon PY and it is equal to MUM, okay, so that means MUX upon PX is also equal to MUM, ठीक है। ये म्यूचुअली इक्वल है, तो MUX upon PX इसके भी इक्वल है, और ये तो है ही ऑटोमेटिकली इक्वल, ओके। सो हम इंडिविजुअली लेके चलेंगे, पहले MUX निकाल लेंगे अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल म्यूचुअली इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से हम वो यूटिलिटी, ओके, यूटिलिटी की वो यूनिट फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में रेस्ट करना है, ओके, ओके। द नंबर ऑफ यूटिल्स वेयर द कंज्यूमर विल स्ट्राइक इन सेटिस्फेक्शन, वो यूटिलिटी हमें मिल जाएगी यहाँ से। सो MUX नहीं पता हमें, PX कितना है, प्राइस ऑफ एक्स है 5 रुपीज़, MUM कितना है, दैट इज 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो MUX आ गया हमारे पास 20, ओके। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स 20 आ गई। ये कौन सी आई है, कहाँ से निकली है, इक्विलिब्रियम के फॉर्मूला से निकली है। दैट मीन्स इतनी यूटिल्स, एक्स कॉमोडिटी से इतनी यूटिल्स उसे जब मिलेंगी तो अपने आप को इक्विलिब्रियम में फाइंड आउट करेगा, ओके। सो दिस इज द नंबर ऑफ
द नंबर ऑफ यूटिल्स, ओके, यूटिल्स का नंबर है जहाँ पे एक कंज्यूमर को सेटिस्फाई फील करना है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन लेवल में होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे रखते हैं 20/5, ओके, तो कितने के इक्वल आ जाता है, एम यू एम के, तो 20/5 इज इक्वल्स टू 4, तो एम यू एम भी 4 है, तो दैट मीन्स ये यूटिलिटी हमारी इक्विलिब्रियम की यूटिलिटी है, ओके। इसी तरह एम यू वाई की निकाल लेंगे हम वाई कॉमोडिटी के लिए, एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू एम दोनों के लिए सेम रहेगा। सो एम यू वाई हमने निकालना है डिवाइडेड बाय पी वाई कितना है ₹10 इज इक्वल्स टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया एम यू वाई इज इक्वल्स टू 40, ओके। 20 and 40 are the number of utils which are to be consumed by the consumer or got by the consumer at the level of satisfaction, ओके, ये वो यूटिल्स हैं जहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में रहेगा, ओके। नाउ हमें वो यूटिल्स तो मिल गए जो उनको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे, द मैक्सिमम यूटिल्स, ओके, 20x की और 40y से, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन कि कितनी यूनिट्स कंज्यूम करके उसको 20 यूटिल्स मिले x से, और y की कितनी यूनिट्स कंज्यूम करके 40 यूटिल्स मिले, ओके। कुछ यूनिट्स तो कंज्यूम करी होंगी x की तो उसको 20 यूटिल्स मिले, और y की कंज्यूम की होंगी तो उसको 40 यूटिल्स मिले, ओके। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी यूनिट्स x की कंज्यूम करके 20 यूटिल्स मिले और कितनी यूनिट्स कंज्यूम करके y के 40 यूटिल्स उन्हें गेन किए हैं, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे x की कितनी यूनिट्स और y की कितनी यूनिट्स, ये कॉम्बिनेशन हमें बनाने में हेल्प करेगा गिवन इनकम। हमने कहा कि गिवन इनकम फुली कंज्यूम हो जानी चाहिए, ठीक है, तो 50 रुपीज़ है हमारे पास, तो इन 50 रुपीज़ को हम कुछ x की यूनिट्स खरीदने में यूज़ करेंगे और कुछ y की, लेकिन कितनी, ओके। तो यहाँ से हम कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं कि अगर x की 5 रुपीज़ पर यूनिट है तो मीन्स x की कितनी मैक्सिमम खरीद सकता है वो 50 रुपीज़ में, सिर्फ x की अगर खरीदता है, ओके। अगर 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सिर्फ x की 50 रुपये में कितनी 50 डिवाइडेड बाय 5, 10 यूनिट्स x की जो है वो यूनिट जो है यूनिट्स बाय कर सकता है, एंड y की अगर बाय करे अकेले तो 5 यूनिट्स 50 डिवाइडेड बाय 10, वाई एक्स वहाँ पे कंज्यूम नहीं करेगा वो, ठीक है। लेकिन ये तो कॉम्बिनेशन दिखाना है, तो दैट मीन्स कुछ यूनिट्स एक्स की कंज्यूम करेगा और कुछ यूनिट वाई की, ठीक है। तो 50 रुपए में से सपोज हम लाइक हिट एंड ट्रायल मेथड से जो है यूनिट्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ओके, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बनाएंगे, कोई सर्टेन फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। सो सपोज 5 रुपीज़ पर यूनिट है तो इसकी ज़्यादा यूनिट्स खरीद सकता है, ऑब्वियसली दिख रहा है, ठीक है, 50 रुपये में इसकी ज़्यादा यूनिट्स खरीदी जा सकती हैं और इसकी कम, ओके। सो जो कॉम्बिनेशन होगा इनके लिए वो हम नियर बाय बनाएंगे, ठीक है, 1 या 2 यूनिट्स का ही डिफरेंस रखेंगे कि एक इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, या 2 इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम नहीं दिखाएंगे, क्लियर। सो फॉर एग्जांपल टेक दिस वन, अगर मैं 3 यूनिट्स इसकी बाय कर लेता हूँ वाई कॉमोडिटी की, अगर 3 यूनिट्स बाय कर लेता हूँ तो कितने रुपए खर्च हो गए पर यूनिट, 10 रुपीज़ के हिसाब से 30 रुपीज़, तो दैट मीन्स 30 रुपये खर्च हो चुके हैं, बचे कितने हैं 20, ओके। तो 30 रुपये इस वाई कॉमोडिटी पे खर्च हो चुके हैं, तो 20 रुपये एक्स कॉमोडिटी पे खर्च होंगे, तो 5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से एक्स कॉमोडिटी की कितनी यूनिट्स खरीद पाएंगे 20 रुपीज़ में, 20 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो 20/5 4 यूनिट्स, ओके। तो 4 यूनिट्स एक्स की एंड 3 यूनिट्स वाई की, ओके, नियर बाय आ गया है, ठीक है। तो हम यही कॉम्बिनेशन ले लेते हैं कि बाय कंज्यूमिंग 4 यूनिट्स ऑफ एक्स, वो यूनिट्स हम यहाँ पे रख देंगे इक्विलिब्रियम के लिए। सो बाय कंज्यूमिंग 4 यूनिट्स ऑफ एक्स द कंज्यूमर got 20 utils, and by consuming 3 units of y he got 40 utils, okay, 4 and 3 units, so 1 2 3 4, clear। अब हमने 4 and 3 का कॉम्बिनेशन लिया है, लेकिन यहाँ पे टेबल में हम मैक्सिमम कितनी यूनिट्स खरीद सकते हैं अगर सिर्फ x की कर रहे हैं या सिर्फ y की, तो 5 यूनिट्स y के लिए, ठीक है, अगर सिर्फ y ही खरीद रहे हैं तो 5 यूनिट्स खरीदी जा सकती हैं, ठीक है, इस गिवन इनकम में, क्लियर। एंड एक्स की 10, तो ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएं, एक में से कोई भी ले लिया तो मैक्सिमम, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन तो यहाँ तक ही दिखाना है, तो ये हमारे लिए उतने ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, तो मैं 5 भी लिया है, ओके। सो 4 and 3, क्लियर। तो 4 यूनिट्स एक्स कंज्यूम करने पे उसको कितने मिलेंगे
20 यूटिल्स, और 3 यूनिट्स वाई की कंज्यूम करने पे मिलेंगे 40। ये इक्विलिब्रियम यूटिल्स आ गए, ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम का कॉम्बिनेशन होगा ना। अब टेबल को कैसे पूरा करेंगे, ठीक है, सिर्फ इनसे ही काम नहीं चलेगा, हमें टेबल को कंप्लीट करना होगा। तो टेबल को कंप्लीट करने के लिए वी विल यूज the law of we will take the help of law of diminishing marginal utility। यहाँ पे हम diminishing law of diminishing marginal utility का law यूज करेंगे। वो क्या कहता है कि when an extra or an additional unit is consumed the marginal utility gets declined or decreased। okay, जब एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की जाती है या फिर when we go on consuming successive units द मार्जिनल यूटिलिटी गेट्स डिक्लाइन। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट या एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती जाती है, ठीक है। तो हमने 3 यूनिट्स वाई की कंज्यूम कर ली हैं, 40 यूटिल्स हमें मिले, तो फोर्थ यूनिट जब कंज्यूम की जाएगी तो 40 से कम मिलेगा, सपोज 35 मिला, 5 उससे भी कम देगा 30 यूटिल्स। बट जब 2 यूनिट्स कंज्यूम की होंगी वाई की तो 40 से ज़्यादा मिला होगा, क्योंकि 2 से 3 पे आने पे मार्जिनल यूटिलिटी घटा है, ठीक है। तो 45 ले लेंगे, 50 ले लेंगे। इसी तरीके से x के लिए करेंगे 20, 4 यूनिट्स पे है तो फिफ्थ यूनिट ने कम दिया होगा, सपोज 15, थर्ड ने ज़्यादा दिया होगा 25, 30, 35, ठीक है, सपोज। क्लियर। तो हमें यहाँ पे मिल गया है कॉम्बिनेशन। ओके, यहाँ पे हमने देखा कि कॉम्बिनेशन इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है कि 1 यूनिट कंज्यूम करके x की 35 मिल रहा है और 4 यूनिट्स कंज्यूम करके y की 35 मिल रहा है। तो इन दोनों को मार्जिनली जब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए कि 1 यूनिट x की और 4 यूनिट y की। लेकिन यहाँ पे इनकम पूरी स्पेंड नहीं हो रही, 4 यूनिट y की अगर उस कंज्यूम करता है तो 40 रुपये y पे खर्च तो कर देगा, लेकिन x की 1 यूनिट ही अगर कंज्यूम कर रहा है तो सिर्फ 5 रुपये ही खर्च कर पाएगा, तो 5 रुपये और बच गए, ठीक है। तो दैट मीन्स x की एक और यूनिट खरीद सकता है। तो जब x की 2 कंज्यूम करेगा तो वहाँ पे 30 यूटिल्स हो जाएंगे और यहाँ पे 35 है, तो फिर इक्वल नहीं हुए, ठीक है। तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम यहाँ पे कौन केस दिखाने वाले हैं जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी डिफरेंट होगी, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम में होगा क्योंकि इस केस को या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। MUX कितना है 20, यहाँ पे है प्राइस ऑफ x 5, तो 20/5 4 आ गया। MUY अपॉन PY 40/10 4 आया, जो कि MUM के इक्वल है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम क्या लेंगे, सेम MU मार्जिनल यूटिलिटी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बाय कंज्यूमिंग 4 यूनिट्स ऑफ x एंड 3 यूनिट्स ऑफ y कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने इस कंडीशन को फुलफिल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे, बाय कंज्यूमिंग 4 यूनिट्स ऑफ x एंड 3 यूनिट्स ऑफ y द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, क्लियर। तो ये केस था जब प्राइस डिफरेंट थे। ओके, यहाँ पे हमारा शेड्यूल कंप्लीट है। नेक्स्ट हम केस देखेंगे जब प्राइसेस सेम है। सेकेंड केस, व्हेन द प्राइसेस आर सेम, जब कमोडिटीज के प्राइसेस सेम है, ठीक है। तो जब प्राइसेस सेम है, ठीक है, तो प्रोपोर्शन लेने की जरूरत नहीं है। MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, मीन्स ये प्रोपोर्शन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब प्राइस सेम है, ठीक है, तो दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम होनी चाहिए, तभी प्रोपोर्शन इक्वल आएगा। ओके, वेरी सिंपल। लाइक अगर मैं प्राइस दोनों का 10 रुपीज़ ले रहा हूँ, ठीक है, तो MUX और MUY दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी प्रोपोर्शन सेम आएगा, ठीक है। सपोज 50 MUX है और 50 ही MUY है, प्राइस 10 है दोनों का, तभी वो इक्वल आएंगे, 5 5, ठीक है। अगर यहाँ पे 40 और 50 किया तो ये 4 आ जाएगा, ये 5, तो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइस सेम है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो जब प्राइस सेम है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे MUX इज इक्वल टू MUY फॉर इक्विलिब्रियम। ओके, जब प्राइस सेम है तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि MUX और MUY दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। क्लियर। बुक वाला केस आ गया, MUX एंड MUY इक्वल है, लेकिन हम यहाँ पे यूनिट्स से सेम नहीं लेंगे दोनों की। ये ज़रूरी नहीं है कि x की भी उतनी ही यूनिट्स कंज्यूम, ओके, एंड y की भी उतनी ही कंज्यूम की हो। क्लियर। इट इज़ नॉट नेसेसरी और नॉट मैंडेटरी दैट द कंज्यूमर शुड कंज्यूम equal units of both the commodities to find or to gain same utility or marginal utility. Clear. It is not necessary. Clear. The point is marginal utility should be equal of both the commodities by consuming some units of the commodities.
ओके, दोनों ही कमोडिटीज की कुछ यूनिट्स कंज्यूम करके जो मार्जिनल यूटिलिटी गेन की है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यूनिट्स सेम हो जरूरी नहीं है, क्लियर। इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ओके। ही मे लाइक वन कमोडिटी और मे प्रेफर वन कमोडिटी ओवर द अदर, ठीक है। एक के ऊपर दूसरे को प्रेफर कर सकता है, तो एक की ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम की हो सकती है, क्लियर। इट इज नेसेसरी। सो यहाँ पे भी हम वही assumptions फॉलो करेंगे कि इनकम शुड बी फुली कंज्यूम्ड, गिवन इनकम शुड बी फुली कंज्यूम्ड, ठीक है, पूरी तरीके से कंज्यूम हो जानी चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो गिवन इनकम है तो इनकम हम अज्यूम करेंगे, प्राइसेस भी गिवन है तो इनकम हमने अज्यूम कर ली, सपोज सेम ₹50 ही हमने इनकम अज्यूम कर लिया है। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी ₹10, price of y commodity again ₹10, okay, because we are taking the case where the prices of both the commodities are same, okay, we are taking the case where the prices are same for both the commodities. The px is ₹10 and py is also ₹10, okay. So by this assumption we have simplified the formula to mux is equals to muy, okay. We have eliminated the proportion mux upon px is equals to my upon py, and it is also not necessary that this should also be equal to mum. proportion can be equal to worth of money. इन दोनों का जो proportion है वो ही worth of money के equal हो सकता है, utilities cannot be equal to worth of money, okay. So हम ये formula use करेंगे. So price is given, okay. Now we have to find out what the marginal utility of x at equilibrium and marginal utility of y at equilibrium. To find out this, we will have to work out on the old formula, that is mux upon px is equals to muy upon py is equals to mum, okay. Because individual utility हमने find out करनी है तो वो इसी के through होगी. So we have to assume mum also. Now we are taking mum as 5, okay. अब हम यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 5 लेके चल रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी या वर्थ ऑफ मनी इज 5, ओके. सो यूनिट्स MUX MUY, okay, this is the table or the schedule we will work out on this. So what is the marginal utility of X where the consumer will strike himself in equilibrium, and what is the marginal utility of Y where the consumer will strike himself in equilibrium? To find out this, we'll use the old formula MUX upon PX is equals to MUM, ठीक है. MUX नहीं पता, PX हमारे पास है 10, MUM is 5, we have assumed MUM 5. So by cross multiplying, MUX is equals to 50, okay. 50 utils we got where the consumer, by gaining this much utils, the consumer will strike in equilibrium, okay. Same as MUY upon PY is equals to MUM. MUY is not given, PY is 10 and MUM is 5, so MUY is also 50, okay. सो दोनों ही सेम यूटिल्स हमें आ गए हैं जो इक्विलिब्रियम के लिए हमने यूज करने हैं, ओके. नाउ सेम इज द केस, number of units we will find out according to the given income, okay. So given income is ₹50 and the prices are ₹10 each, okay. For both the commodities the prices are ₹10 each, clear. So the maximum number of units of any commodity can be bought 5 units, okay. If only X is being bought by the consumer, only 5 units can be bought in this given income at maximum, okay. 5 units maximum खरीद सकता है, so number of units will be 5, clear. Now we have to find out the combination, okay. दोनों ही यूनिट कमोडिटीज का वो कॉम्बिनेशन जहाँ पे वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में सेट करेगा, क्लियर. सो कितनी यूनिट्स एक्स की कंज्यूम करेगा और कितनी यूनिट्स वाई की कंज्यूम करेगा. सो वी हैव टू derive the combination according to the given income. So suppose if 3 units of X are being bought by the consumer, so how much amount of money has been spent on X if 3 units are being bought or are bought by the consumer? So how much amount has been spent? ₹30 according to the price, clear. So 30 rupees spend कर चुका है, तो remaining कितना है? 20 rupees, okay. So how many units according to the price of Y can be bought? 2 units.
So 3 and 2 units we are taking as a combination for equilibrium. Okay, 3 of x and 2 of y. So put the values 3 of x and 2 of y. Okay, these are the equilibrium utility what we have derived by the formula. Okay, equilibrium formula से हमने derive किया है. Clear? Now use law of diminishing marginal utility. So for completing the table for x, if he consumes 4 units, so the marginal utility gets declined by from 50 to say 40. If he consumes more, 5 units of x, it gets further reduced to 30. But if the when the consumer has consumed 2 units, so the marginal utility certainly or surely would have been more or higher than 50, because 2 units पे ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे डिक्रीज होता है. सो टेक 60 एंड दिस इज 70, सेम एज फॉर y commodity, 50 से 40, 30, 20 and 60. Okay, so this is the table. Now what we can see, uh, by observation we can observe that, or we can like see that in alternative combinations marginal utility are same for both the commodities. In alternative, like for 2 units of x and 1 unit of y, ठीक है, both the marginal utilities are same. So according to the formula, MUX is equals to MUY. Okay, for equilibrium, when the prices are same, the condition of equilibrium is MUX should be equal to MUY. Okay, so at 2 units of x and 1 unit of y, by consuming 2 units of x and 1 unit of y, the consumer's marginal utilities are same. Okay, so this can be the combination of equilibrium. Okay, that means consumer equilibrium में हो सकता है by consuming 2 units of x and 1 unit of y, because marginal utilities are same. See, next thing, क्या कंज्यूमर की पूरी इनकम स्पेंड हो रही है? By buying 2 units, he spent 20 rupees on x, and by 1 unit of buying 1 unit of y, 10 rupees are spent. Okay, so total in total 30 rupees only are spent. Okay, remaining 20 are there. Okay, तो उनकी वजह से उन 20 rupees से वो या तो y ज़्यादा खरीद सकता है या x. So next हम देखते हैं 3 and 2. Okay, if 30 units are bought of x commodity, sorry, 3 units of x are bought of x commodity, so 30 rupees for x or 30 rupees are spent on x, and 2 units of y, 20 rupees are spent on y. So 30 plus 20, that means the whole income is being spent. Clear? So this should be the combination. Clear? और अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो 4 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ वाई, ये दोनों इक्वल हैं. तो 4 यूनिट्स परचेज करने के लिए 40 रुपीज़ स्पेंड किए, 3 यूनिट्स परचेज करने के लिए 30, टोटल 70 रुपीज़ स्पेंड हुए. क्या कंज्यूमर के पास टोटल 70 है? नो, द गिवन इनकम इज ओनली ₹50. ओके, सो ये कॉम्बिनेशन वो नहीं खरीद सकता है. ठीक है, सो कौन सा कॉम्बिनेशन खरीद पाया? सिर्फ 3 and 2, 3 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई ही उसने बाय किया है. ठीक है, खरीद पाया है. सो बाय कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स ऑफ एक्स and 2 units of y, the consumer is in equilibrium. Clear? This is the case where the prices of both the commodities were same. Okay, so it is not necessary that सेम यूनिट्स, ओके, 3 यूनिट्स ही एक्स की या 3 यूनिट्स ही वाई की कंज्यूम की जानी चाहिए. ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, कॉम्बिनेशन में वो कर सकता है. तो थ्रू दिस कॉम्बिनेशन, अब इसको हम यहाँ पे लास्ट में लाइन लिख देंगे कि बाय कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई, द कंज्यूमर सेट हिमसेल्फ इन इक्विलिब्रियम. ओके, बिकॉज the condition MUX is equals to MUY when the prices are same is satisfied and the given income is spent wholly or fully. Okay, so these were the two cases where the consumer was in equilibrium in two commodity case. Okay, first one when the prices were different and the second one when the prices are same. दो अलग अलग cases हमने यहाँ पे find out किए हैं.